Yes. Okay, okay, fine. Yeah, thank you very much, Akshay. Hello, everyone. My name is Asmit Joshi. I'm working as a sales manager in Secura from last 2 years, and we are a part of Sanda Group. We are a part of Sanda Group from last 14 years. It's a 14 years old company, and we have diversified our business into wellness, media, and technology. So we have came in technology from 2011. From 10 years, we are into the technology, and we have hotels in Goa like Dudhsagar Spa Resorts and Baywatch Resorts as well. So what is our agenda today? We will tell you about the mission. What is the mission of our product and what is the mission of our company? What is the purpose of a Secura Guard? Why we have introduced the Secura Guard in the market, and how data is getting out of control nowadays. The small medium enterprises like Tally users, big MNC companies, how their data is getting out of control, and what is actually the Secura Guard, what are the benefits of the Secura Guard, and why you want to become a partner with us, what is the beneficial if you will become a partners with us. And after that, there will be a product demo, and after that there will be a pricing about the product, that how the pricing has been segregated, and after that there will be a question and answer. If you have any queries, definitely you can ask at the end of the session. And there is one another host, Mr. Himanshu Modi. He is working as a technical director from last 20 years in Secura Group. So he will give you a proper demo of the product, and he will show you the pricing, and he will solve your queries as well. Okay. So I just want to ask a question to everyone who is present over here, because everyone is running a small company or big company, means they are running a company over here. So I just want to ask you that currently you are dealing as a set of employees, like department wise, if we can say HR department, IT department, accounts, programming, whatever the departments you have currently. So I just want to ask one question to everyone, that do you think your business data is in your control in this today digital world? I just want a two-way communication in this presentation. So everyone should come up with the answer. If they don't know, it's okay. If anyone want to come up with the answer, they can say. Tarun sir, Sunil sir, Sachin sir, Anand sir, do you think your business data is in your control? Atul sir. Hello, am I audible? Yeah, hi, Himanshu. Yeah, Asmit here. Yes, sir. Do you think Uh, your business data is in yeah, your we can control currently? we can share it partially. Not sure 100%, but Okay, right. yeah. Yeah. Okay, okay. Thank you very much, sir. Anyone want to try? Sachin sir, Sachin More sir, you want to try? Sambhu Singh sir, Sunil sir. Okay, fine. I will continue it. So in this digital world, it's a bit impossible to control the data, because what happened before 15 to 20 years, every data was physically maintained by the owner of the company. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ डेटा मेंटेन करना है, मुझे किससे हिसाब लेना है या किसको हिसाब देना है, तो मैं एक जर्नल मेंटेन करता था, एक बुक मेंटेन करता था, उसमें मैं सब कुछ लिखता था। बट उसका वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो मेरे पास ही होता था। बट अभी कैसा होता है कि एवरी वन थिंक्स दैट या आई हैव दिस डेटा इन माई पीसी, दैट मीन्स दिस डेटा, आई हैव द टोटल अथॉरिटी ऑफ दिस डेटा। बट कैसा होता है कि उसके नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट पीछे कितनी हो रही है वो आपको पता नहीं। अगर वो किसी ने कॉपी भी कर लिया, अगर मेल पे भी अगर किसी ने कॉपी कर लिया या तो ट्रांसफर कर लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा। बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ बाबा, ये डेटा सिर्फ मेरे पास ही है। बट ऐसा नहीं होता है, उसके नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट हो रही है। अगर वो कॉपी अगर कहीं बार आपके कंप्यूटर के पास चली गई हो, अगर वो डेटा कुछ भी हो, अगर आपके कस्टमर का डेटा हो या आपका अकाउंट्स का डेटा हो, वट एवर इट इज, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, इट्स अ पिलर ऑफ योर बिजनेस। सो व्हाट इज आवर मिशन? हमारा मिशन क्या है ये प्रोडक्ट के पीछे? दैट आवर मिशन इज टू पुट यू बैक इन कंट्रोल ऑफ योर डेटा। मतलब आपका जो भी बिजनेस डेटा है उसको हम लोग वापस आपके कंट्रोल में हमको ला के देते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपके कंट्रोल में आपका पूरा डेटा होता है, आपके पास पूरा उसका अथॉरिटी होता है, और वो डेटा का लीकेज का जो चांसेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता। सो नाउ आई विल शो यू व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है हमारे सिक्योरा गार्ड के, एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस डेटा। ये सिक्योरा गार्ड अगर आप यूज करोगे तो उसका बेनिफिट्स आपको क्या है?
क्या होगा? So what is the first benefits over here? That is theft proof. Theft proof means what? For example, if your internal employees or external hackers will not allow to copy the data, उन लोग आपका डेटा कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल डेटा कॉपी भी कर लिया बाय चांस, हम लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अगर उन्होंने डेटा कॉपी भी कर लिया, वो टोटली एनक्रिप्टेड रहेगा, वो टोटली लॉक रहेगा। मीन्स ऐसा होगा कि चाबी हमारे पास रहेगी और डेटा उनके पास रहेगा। वो डेटा का कुछ यूज नहीं कर सकते, ना उसको ओपन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका, मतलब वो डेटा उनको यूज नहीं होगा। Now second benefit is safe from mistake and disaster. For example, अगर मैं आपको बताऊं, for example, if your device gets corrupt, lost, अगर आपका लैपटॉप खराब हो गया, गुम गया, अगर कुछ हार्ड डिस्क आपका करप्ट हो गया, तो उसका टोटली बैकअप सॉल्यूशन रहेगा। मतलब वो डेटा का टोटली बैकअप क्लाउड पे रहेगा, मतलब आपका डेटा कहीं घूम नहीं जाएगा। अगर वो लैपटॉप किसी के हाथ में भी लगा तभी भी वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो टोटली डेटा जो होता है वो लॉक होता है और एनक्रिप्टेड होता है। उसका पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता रहता है, किसी और को नहीं, और वो इजीली पॉसिबल नहीं है, कोई इजीली खोल नहीं पाएगा वो पासवर्ड, बिकॉज उसकी चाबी हमारे पास रहेगी, बट वो इजीली हैक नहीं कर पाएगा उसको। थर्ड बेनिफिट यह है कि सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड। इसमें क्या होता है कि इफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू एक्सेस सम इम्पोर्टेंट फोल्डर, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा कि कोई कस्टमर का डेटा होगा या तो अकाउंट्स का डेटा होगा, अगर आपको वो ये करना है कि वो खुद आप ही एक्सेस करो, अब आप नहीं चाहते कि और कोई एक्सेस करे, तो ये भी पॉसिबल है। इसमें आप उसको इनविजिबल करके रख सकते हो आपके कंप्यूटर में। इनविजिबल करने के बाद आप उसको प्रॉपर पासवर्ड भी रख सकते हो, इससे वो ओपन नहीं होगा। अभी कैसा होता है कि आजकल अभी हम विंडोज देखे, मैक देखे, या कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, या तो हम लोग मोबाइल देखे, हम इजीली कोई भी वीडियो, इमेज, फोल्डर, फाइल इजीली हम लोग उसको हाइड करके रख सकते हैं। बट ये बच्चे बच्चे को पता है, इसका नॉलेज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे भी टाइप करते हो कि विंडोज में फोल्डर कैसे लॉक किया जाता है, वो आपको इजीली आ जाएगा सामने। बट इसमें ये ऐसा फोल्डर लॉक हो जाता है और इसमें आपको पासवर्ड भी होता है, ये पासवर्ड के बिना ओपन नहीं होगा। नाउ फोर्थ इज इंट्रूडर प्रूफ। इंट्रूडर प्रूफ मीन्स क्या होता है? अगर कोई आपके सिस्टम में लॉग इन करने की ट्राई कर रहा हो, then at that time you will get an alert. If someone is doing a multiple attempts try कर रहा है अगर किसी थर्ड मशीन से या किसी आउटडोर मशीन से, तभी भी आपको उस वक्त आपका डेटा का अलर्ट आएगा और उस वक्त आपका डेटा टोटली लॉक हो जाएगा। मीन्स वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो टोटली ऑटोमेटिकली डेटा लॉक हो जाएगा। इसका मतलब वो एंटर नहीं कर पाएगा उस सिस्टम में। अभी है स्पाई प्रूफ बेनिफिट। स्पाई प्रूफ मीन्स व्हाट, क्या होता है कि आजकल के डिजिटल जमाने में हम लोग कभी कुछ रिसर्च करने जाते हैं गूगल पे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या तो कुछ R&D करने जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना, कहाँ से तो एक EXE डाउनलोड हो जाता है और वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या डाउनलोड हुआ है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम हमारे काम में बिजी रहते हैं। बट उस वक्त क्या होता है कि वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो टोटली आपके बिजनेस में जितना भी डेटा है वो टोटली रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाता है और स्क्रीन शॉट हो जाता है। बट इसमें ऐसा होता है कि आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा और ना आप स्क्रीन शॉट ले पाओगे, इसमें डेटा आपका टोटली सेफ रहेगा। So I just want to ask one simple question to everyone that what do you think is the real danger to the data and subsequently for the business? मतलब डेटा के लिए भी और बिजनेस के लिए भी डेंजर क्या है? What do you think, that people or technology? I want everyone should come up with the answer. Atul sir, Anand sir, Sachin sir, Shambhu Singh sir, Sunil sir, तरुण सर, व्हाट डू यू थिंक डेंजर क्या है? मतलब पीपल डेंजर है आपके डेटा और बिजनेस के लिए, या टेक्नोलॉजी डेंजर है? Both are danger actually. ओके फाइन सर, ओके, थैंक यू। एनीवन वांट टू ट्राई? ओके फाइन। Based on our research, I think people is the right answer because people are the biggest threat for any business as well as assets. हम कहते हैं कि employees are the assets, right? Employees are the assets, but they are the biggest threats as well. Employee know about your data, where it is stored, how it is been stored,
और कितना स्टोर हुआ है वो एम्प्लॉय को ही, इंटरनल एम्प्लॉय को ही पता रहता है। मैनी बिजनेसेस सफर फ्रॉम डेटा लॉस ड्यू टू ह्यूमंस की वजह से डेटा लॉस होता है। अब पीपल क्यों आंसर है, उसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू टू मेक योर वर्क इजी एंड इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द राइट वे। अगर टेक्नोलॉजी को अगर आपने राइट वे में इम्प्लीमेंट किया तो आपका वर्क इजी होगा, आपका टाइम बचेगा और आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। बट ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डेफिनेटली ह्यूमंस मीन्स एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। द थ्रेट ऑफ बिजनेस कम फ्रॉम you, employee, business partner and cyber attacks. Then why I have specially mentioned you, मैंने क्यों blame किया that you are the biggest threat? Because if I will ask you one simple question, that everyone has heard about the ransomware activity, SEO fraud, phishing activity, online जो frauds हो रहे हैं वो सबने सुना है उसके बारे में। But are you 100% sure that this type of data will not happen with you? अगर वो आपके साथ हुआ, अटैक हुआ, तो आप वो पूरा डेटा क्योर कर पाओगे? अगर ये डेटा आप, ये लॉस आपके साथ होगा नहीं, इसकी आपकी 100% गारंटी है या इसका 100% नॉलेज है आपको? आई जस्ट वांट आंसर इन yes or no. आनंद सर, अतुल सर, तरुण सर, डू यू हैव अ 100% नॉलेज ऑफ दिस रैंसमवेयर एक्टिविटीज? कैसा होता है ये, कैसा इसका प्रोसेस होता है, क्या होता है? Am I audible? Yeah, Yes. I think we have some basic idea, Okay. but not technically fully idea कि how this work and Okay. how it done. Okay, okay, fine. Thank you very much. Thank you. I will give one substitute example right now that people पहले ये नहीं पता था लोगों को कि ये कोरोना वायरस होता क्या है। इंडिया में आने से पहले, ये बीमारी आने से पहले कोरोना ये वर्ड का मीनिंग भी किसी को पता नहीं था। बट अभी बच्चे बच्चे को पता है कि दैट इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, दैट यूज सैनिटाइजर, कीप सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज मास्क। ये बच्चे बच्चे को पता है। बट ये क्यों पता है? जस्ट इसके पीछे रीजन ये है दैट द गवर्नमेंट हैज एजुकेटेड अस, टीवी थ्रू, न्यूज़पेपर थ्रू, मैगजीन थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू, हर एक जगह पे कोरोना का ऐड आ रहा है और उसमें एवरी टाइम एक एक बम्बार्डिंग किया जाता है कि ये स्टेप्स यूज करो तो आप कोरोना से दूर रहोगे। तो ये बच्चे बच्चे को अभी पता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, दैट अगर आपको ये रैंसमवेयर के बारे में अगर 100% पता होगा, इफ यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, देन डेफिनेटली आप ये रैंसमवेयर और सी फ्रॉड एक्टिविटीज से बच सकते हैं। सो व्हाई डू बिजनेस नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा? मतलब बिजनेस को कंट्रोल क्यों चाहिए एंड बिजनेस का जो डेटा है वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है? मीन्स रीजन क्या है उसके, मतलब कौन से 3 स्टेप्स है? सबसे फर्स्ट है इंटेंशनली। इंटेंशनली क्या होता है कि अगर कोई आपका एम्प्लॉय है, तो अगर वो आप पे कुछ गुस्सा निकालना चाहते हैं, वो आपका पूरा डेटा पेन ड्राइव लेगा, पूरा डेटा कॉपी करके किसी कंप्यूटर की कंपनी ज्वाइन करके पूरे आपके कस्टमर्स घुमा देगा वहाँ पे। मतलब इतने साल का आपका कस्टमर्स का जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। और सेकेंडली ये है अनइंटेंशनल एंड एक्सीडेंटली। अनइंटेंशनल जैसे मैंने आपको स्पाई प्रूफ बेनिफिट के बारे में बताया कि आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, EXE डाउनलोड हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पूरा डेटा रिकॉर्डिंग हो जाता है और स्क्रीनशॉट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। बट आपका इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन था आपका काम करना, वो तो ऑटोमेटिकली पीछे हो रहा है बट आपको पता नहीं, ये अनइंटेंशनली हो जाता है। और फॉलिंग विक्टिम्स टू साइबर अटैक, जैसे मैंने रैंसमवेयर, सीओ फ्रॉड के बारे में बताया, आपको पता नहीं, आप अपने आपका डेटा सर्वर पे रखा है, अपने क्लाउड पे रखा है, वो ऑटोमेटिकली पूरा एनक्रिप्टेड हो जाता है, फिर हम लोग को ही पैसा देना पड़ता है हमारा डेटा लॉक करने। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कोई कोई केसेस मैंने सुना है कि पैसे देने के बाद भी उन लोग डेटा एनक्रिप्ट कर अनलॉक करके नहीं देते, उन लोग और पैसा मांगते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, मेंटली प्रेशर आ जाता है। एक ओनर, अगर हम लोग सोचे ओनर, कंपनी के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक मेंटली इंसान को प्रेशर दिया जाता है, बिकॉज आपका इतना डेटा है, वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको 100% गारंटी नहीं है। सो why do business need to take control of their data? मतलब जो बिजनेस का जो डेटा है उस पर कंट्रोल क्यों लाना चाहते हैं? तो इसके पीछे एक ये है कि इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बैकबोन ऑफ द बिजनेस।
मतलब जो भी डेटा है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बैकबोन ऑफ द बिजनेस। बिफोर 15 to 20 ईयर्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक जर्नल मेंटेन होता था, फिजिकली डेटा मेरे पास मेंटेन होता था, उसमें चोरी होने के चांसेस बहुत बहुत कम थे। बट ये डिजिटल वर्ल्ड में कितनी कॉपीज अब जनरेट हो रही है ये आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं आपको एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि डेटा कैसे चोरी होता है आपका, अनइंटेंशनली कैसे होता है। everyone is using a mail, right? A Rediff mail, Gmail, Outlook, whatever. So I just want to ask you one question. अगर मैंने आपको एक मेल किया, फॉर एग्जांपल मेरा आधार कार्ड मेल किया आपको फॉर एग्जांपल, तो आधार कार्ड अगर मैंने आपको मेल किया तो इसके कितने नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट होते हैं? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अतुल सर, आनंद सर। Yes, there are around 4 to 5 copies, I thought so. Definitely right, sir. Exactly, 100% you are right, sir. There are Yes, totally 4 separate copies. servers. Yes, there are 4 copies which are getting generated. पहला कॉपी ये जो होता है, अगर मैं आपको मेल करूँ तो मेरे सेंड आइटम्स में रहेगा, मेरे पीसी में रहेगा और मेरे सर्वर पे रहेगा। और सेकंड रहेगा आपके इनबॉक्स में रहेगा और आपके मेल सर्वर पे रहेगा। तो 4 कॉपीज टोटली जनरेट होती है इसमें। बट अभी कैसा होता है कि अभी मेल सर्वर इज वेरी इजी टू हैक। अभी आप देखोगे ना, जहाँ पे भी हैकिंग हो रहा है ना, सब मेल सर्वर ही हैक करते हो ज्यादा करके। सब हमारे डेटा, अभी जैसे आप जीमेल यूज कर रहे हो तो आप उसको ड्राइव पे कनेक्ट लिंक करके आप डेटा रख देते हो उसके ऊपर। तो अगर मेल आपका हैक हो गया तो डेफिनेटली आपके ड्राइव भी हैक हो जाता है और उसमें से डेटा आपका टोटली इंक्रिप्टेड हो जाता है। तो इसमें ये जो डेटा है कि आपका बिजनेस का डेटा है ना, आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं उस वक्त ऐसा। सो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? सो नाउ वी हैव केम अप विद द सॉल्यूशन नोन एज सिक्योरा सॉल्यूशन। तो हम लोग ने एक प्रोडक्ट निकाला है सिक्योरा सॉल्यूशन। सो नाउ वी हैव फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हम लोग ने 2 चीज में यहाँ पे फोकस किया है, एक तो टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है और सेकंड है एजुकेशन पे फोकस किया है। अभी सिक्योरा साइबर शील्ड, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द सिक्योरा साइबर शील्ड। हम लोग पहले एजुकेशन पे बात करते हैं। अभी जैसे कि किसी को पहले पता नहीं था कि फिशिंग एक्टिविटी, सीईओ फ्रॉड, रैंसमवेयर क्या होता है, बट हम लोग आपको इसमें टेस्ट करवाते हैं। हम लोग एक जानबूझकर आपको एक मॉक अटैक करवाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको वहाँ पे सिखाते हैं कि फिशिंग एक्टिविटी ऐसा होता है, रैंसमवेयर ऐसा होता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा आपका डेटा बचाना चाहिए, आपको ऐसा अवेयर होना चाहिए, ये मैसेजेस और ये जो लिंक्स मेल पे आते हैं उस पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास टोटल 200 मॉड्यूल्स है। तो 200 मॉड्यूल्स में हम लोग आपको प्रॉपरली सिखाते हैं। सो अवर मिशन इज टू कन्वर्ट योर एम्प्लॉय इनटू ह्यूमन साइबर शील्ड, बिकॉज आपके हर एक एम्प्लॉय को नॉलेज होना चाहिए कि साइबर शील्ड होता क्या है। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, दैट इज 100% राइट। बट इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अगर कल आपके ऑफिशियल मेल में एम्प्लॉय को कुछ लिंक आया, अगर उसने क्लिक किया, आपका पूरा डेटा लॉक हो जाएगा। तो हम लोग साइबर शील्ड के बारे में टोटली आपको प्रैक्टिकल हम लोग आपको नॉलेज देते हैं कि ये क्या होता है, ऑनलाइन एक्टिविटी, फ्रॉड एक्टिविटी कैसे होता है, क्यों होता है, अगर ये हुआ तो कैसे इससे बचना है। एंड सेकेंड इज सिक्योरा वर्क, सिक्योरा गार्ड, जैसे कि इसमें हम लोग आपको बताते हैं टोटली इट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मल्टीपल कॉपीज आपके जनरेट होते हैं पीछे, बट आपको पता नहीं होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पीसी में अगर कोई डेटा रखता है तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो उसमें आपका डेटा का ये नहीं रहता, मतलब डेटा चोरी होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग आपको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं कि आपका डेटा कैसे प्रॉपरली सिक्योर किया जाए। अभी कैसा होता है कि रिमोट एक्सेस थ्रू, अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे अभी करंटली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज सब वर्क फ्रॉम होम है, तो अगर आपने कुछ डेटा दे दिया काम करने के लिए, तो उसमें भी डेटा आपका टोटली एनक्रिप्टेड रहता है, उसमें आपका डेटा लीकेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ओवर हियर वी हैव फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड ओवर एजुकेशन एज वेल। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सिक्योरा? सिक्योरा है जो उसके मेन फीचर्स क्या है, मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट फीचर्स क्या है सिक्योरा के। सो नेक्स्ट स्लाइड हिमांशु सर। हाँ, तो ये सिक्योरा गार्ड जो है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द सिक्योरा गार्ड। अभी बहुत सारे कैसे होते हैं कि बहुत सारे जो आपके डेटा होते हैं वो आप कैसे कि टिपिकली लैपटॉप में या कंप्यूटर में मेंटेन करते हो, तो आपका टैली डेटा भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी कैसा होता है कि अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ तो इजीली मैं आपका पेन ड्राइव में लगा के आपका डेटा टैली का
वो फोल्डर कॉपी करके दूसरे टैली में इजीली मैं ओपन कर सकता हूँ। बट यहाँ में कैसे है कि यहाँ पे हम लोग एक यूएसबी जो होता है वो भी हम लोग लॉक करके रखते हैं, तो आप इजीली यूएसबी कनेक्ट करके आप डेटा ओपन नहीं कर सकते और या ना इसका कॉपी कर सकते हैं। आप क्लाउड पे अगर डेटा रखते हो इसका, तो क्लाउड पे भी आपका डेटा टोटली हम लोग एनक्रिप्टेड करके रखते हैं। हम लोग आपको एक फीचर देते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स व्हाट, क्या होता है कि आप इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। वहाँ से डेटा लीक होने का चांसेस बहुत कम होता है। जैसे कि आजकल लोग बहुत सारा व्हाट्सएप यूज करते हैं, अभी व्हाट्सएप के बाद नया आया है टेलीग्राम, टेलीग्राम के बाद आया सिग्नल। उसमें ग्रुप बना के व्हाट्सएप वेब लॉगिन करते हैं तो इजीली फाइल आउटडोर में शेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे फाइल कॉपी करना है तो मैं मेरे भाई डैडी किसी को भी भेज सकता हूँ। बट इसमें कैसे कि इजीली बाहर किसी को मैं फाइल नहीं भेज सकता। कम्युनिकेशन जो भी करना है वो इंटरनली करना है और कंपनी को पता चलेगा कि इंटरनल ये इसने किसको किसको क्या क्या फाइल शेयर किया हुआ है करके। Over to you, Mr. Himanshu sir. Now Himanshu sir will explain you about the product, about the partnership as well, and after that there will be a question and answer sessions. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you clearly. Yeah. Okay. So let me start this. So we have created this application Secura. So the mindset of the so the purpose of the Secura is that to control your data. Now to put you back in control of your data. So what we have done here. So whenever your data will be generated in your computer, like any form of digital content you generate, like email, cloud file or in the local computer data file you generate, we lock at the source. So हम क्या करते हैं, उसको ताला मार देते हैं और रैंडम की से ताला मारते हैं और जो की का कंट्रोल है वो आपके पास है, एज एडमिन ऑफ द कंपनी आपके पास है। अगर हमें आपके एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं, भले एम्प्लॉय ने क्रिएट किया कंटेंट, लेकिन कंटेंट ओनर आपकी रहेगी। मतलब इफ सपोज योर एम्प्लॉय इज सेंडिंग समथिंग टू अदर पर्सन and you want to take back, you can take back anytime and you can check what employees has sent and everything. तो बेसिकली आपका कंट्रोल हो जाता है, एक्टिविटी लॉग भी मेंटेन होता है, जिससे यूजर को पता है कि उसका जो भी डेटा जो फाइल शेयर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसका ट्रैक हो रहा है एंड एडमिन विल गेट द रिपोर्ट ऑल्सो। ओके, नाउ हमने जैसे बताया कि डेटा जो है आपका लॉक हो जाता है और ट्रैवल होता है। हम हमारे यहाँ पे जीरो नॉलेज पॉलिसी फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एम्प्लॉय का नहीं रहता है, ना ईमेल एड्रेस ना मोबाइल नंबर। वी आर जस्ट कीपिंग द हैश वैल्यू ऑफ योर डेटा, सिंपल इज दैट। ओके, सो वी मेंटेन द जीरो नॉलेज पॉलिसी। नाउ हाउ सिक्योरा वर्क्स। सो हम क्या करते हैं कि आपने जब भी समझो कि फॉर एग्जाम्पल कोई मेल किसी ने किया, तो आपका मेल जो ट्रैवल होगा आपके मेल सर्वर से होगा। फॉर एग्जांपल आप इफ यू आर यूजिंग गूगल होस्टिंग और माइक्रोसॉफ्ट 365 और रेडिट मेल और माइट बी अ पर्सन होस्टिंग सर्वर, okay, your mail will be travel from your mail server. So for example, somebody sending me a mail, I will receive the mail. So mail will travel first, so your mail content will be locked with the key, okay, and the locked mail will be travel from your mail server to my mail server. So mail is in the lock format. तो क्या होगा कि अगर कोई बीच में फिशिंग कर रहा है, तो कुछ कंटेंट ऐड करने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दैट कंटेंट इज नॉट रीडेबल, इवन अटैचमेंट विल बी नॉट रीडेबल। ओके, सो चांसेस ऑफ getting data loss is very low, is not, it means it's not possible right now. So your data will not get lost any in the transit mode. Okay, now second thing, when I receive the mail, I want to read the mail content. So what we have done, Secura to Secura key transfer process we have developed. So I will the key will be transferred to me separately from Secura to Secura proprietary process, and the way we do the key transfer process is very secure. Okay, and the way we did that key, suppose somebody steal the key also in between. So for example, अश्मित ने वो की पकड़ ली और उसने उसके पास ले ली, लेकिन वो ओपन नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमने वो प्रोसेस कैसा किया है कि बैंक के लॉकर में कैसा होता है कि आपकी एक चाबी लगती है और बैंक का लॉक, बैंक के जो भी मैनेजर है या मतलब बैंक के क्लार्क है वो अपना चाबी लगाएंगे और दोनों चाबी लगने के बाद ही खुलेगा। वैसे ही हमारा लॉजिक है कि हम आपके वहां पे दो चाबी बनाते हैं, एक आपकी चाबी और एक पब्लिक चाबी। तो अगर मैं आपको कोई कंटेंट भेजता हूं तो आपकी जब तक चाबी नहीं लगेगी, एक्चुअल चाबी, और मेरी पब्लिक की नहीं लगेगी, तब तक वो कंटेंट ओपन नहीं होगा। मतलब मेरा की कोई लेके भी जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके पास पब्लिक की है, प्राइवेट की नहीं है। ओके, so this is how we developed this application. That's the reason we applied this process to securing data and transferring keys. We applied for the patent. हमारा product patent applied है. Okay, but in Secura Guard, so in Secura we have created multiple products like Secura, My Secura, Secura Work, Secura Office, okay, and Secura Guard.
सिक्योरा फोटोज भी है हमारा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लेकिन वी आर जस्ट राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट द सिक्योरा गार्ड. ओके, so in Secura Guard we provide tele data protection, we also provide cloud backup solutions of your tele data, we provide instant messaging solutions, and we also provide ransomware protection in your local computer. Okay, so we provide in Secura take back, allow copy, allow forward, allow edit, app burn features. Means suppose आपका कोई डेटा अगर कोई डिवाइस है कोई चोरी हो गया या somebody is trying to log in, आप जैसे एक डिवाइस बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिकली उसका डेटा सब वहां से निकल जाएगा. Audit trail report, you will see the report that which person is doing what. Okay, IP blocking features भी हमारे पास है. Okay, अगर आपका एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो ऐप बंद फीचर्स भी है. ओके, एंड रैंसमवेयर फीचर से लॉक डिवाइस का लॉक फोल्डर का फीचर है. ये सब फीचर हम आपको यहाँ पे देते हैं. ओके, so what is the advantage of becoming a partner with us? Okay, and why you become a partner with us? So before I go with that section, anybody has a question about the Secura features? किसी को कोई query या question है? Hello, is anybody has a question? Hello? No question. You can continue. Okay, thank you. Okay, so why you become a partner with us, right? So you know data security ये जो है एक बड़ा वर्ड है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ा बिजनेस है. $1 ट्रिलियन के ऊपर का बिजनेस है ये. ओके, एंड जो टेक्नोलॉजी लोग अभी करंटली इंप्लीमेंट कर रहे हैं डेटा के ऊपर जो वॉच कर रहे हैं सिक्योरिटी कर रहे हैं, इट इज एमएनसी. उनके पास कैसा है कि उनके पास अपना खुद का आईटी सपोर्ट टीम है जो कॉन्स्टेंटली उनके डेटा को मॉनिटर करता है, चेक करता है डेटा हैक हुआ है, कोई किसी ने कॉपी किया है, ये सब चीजें वो चेक करता है. लेकिन आपका ये जो अभी करंटली एसएमईज है, स्पेशली एसएमईज, उनके पास अभी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आपके डेटा को कंट्रोल करे, मतलब उसके डेटा को कंट्रोल करे, ब्लॉक करे या सिक्योरिटी दे या 24/7 किसी को मॉनिटर करे. ओके, सो द हियर यू हैव अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. ओके, बिकॉज जो भी कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको भी पता है, जैसे अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि एयर इंडिया का डेटा लीक हो गया, डेटा सर्वर हैक हो गया, लेटेस्ट में देखा होगा आपने. फेसबुक के भी डेटा हैक हो चुके हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा हैक हो चुके हैं. तो हमने इसीलिए ये प्रोसेस ऐसा सेटअप किया है कि जिसमें आपका कंट्रोल होगा और डेटा पहले से ही लॉक करते हैं. लोग क्या करते हैं कि डेटा को बनाते हैं, जनरेट करते हैं और वो सिक्योर जगह पे रखने की कोशिश करते हैं और डेटा को ओपन रखते हैं और सब जगह पे ताला लगाते हैं. हमने क्या किया, डेटा के ऊपर ही ताला लगा दिया. सो बेसिकली हमारा जो सॉल्यूशन है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देगा आपके कस्टमर के साथ. सेकेंड थिंग, आपके जो कस्टमर्स है जो अभी छोड़ के चले गए होंगे या आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर तो है ही, लेकिन जो आपके कस्टमर जो आपको छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज टैली है, आप टैली बेचते हैं या अदर कोई सर्विसेज बेचते हैं, उसमें कैसा होता है कि रिन्यूअल किसी के पास भी चला जाता है और कस्टमर आपका जो है वो किसी और के साथ रिन्यू कर लेता है, शायद वो डिस्काउंट देता है या कुछ ऑफर देता है, वॉट एवर रीजन, आप उस कस्टमर को रिट्राइव कर सकते हो, आपकी इनकम ग्रो कर सकते हो. बिकॉज ये सॉल्यूशन आप एड ऑन बेच सकते हो टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज न्यू कस्टमर एज वेल एज लॉस्ट कस्टमर्स. ओके, you will get 25% commission on each and every sales and include renewals. तो हमारा प्रोडक्ट SaaS बेस्ड है और हमारे प्रोडक्ट में आप जो जुड़ते हैं तो रिन्यूअल जो भी है वो आपका कस्टमर आपके पास ही रहेगा. हम डायरेक्टली कोई हमारे पास रिन्यू नहीं कर पाएगा, ना ही कोई दूसरा पार्टनर उसको रिन्यू कर पाएगा. ओके, तो जैसे आप LIC के एजेंट होते हैं, LIC में आपने किसी का पॉलिसी, आपने किसी की भी पॉलिसी आपने ली तो एजेंट को वो कमीशन मिलता ही रहता है, भले वो दूसरे के पास वो कस्टमर जाके पेमेंट प्रीमियम करे या कुछ भी करे, लेकिन जो जिसने उसकी पॉलिसी जिसने एनरोल की है उसको कमीशन मिलता है. राइट, सो वैसे ही हमारी स्कीम है. अपॉर्चुनिटी टू गेन एडिशनल इनकम, जो बिकॉज आपको क्या है कि एड ऑन प्रोडक्ट है, आपको ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर ही आपको करना है, तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास से आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं. ओके, नो अपफ्रंट ज्वाइनिंग फीस, हम कहीं भी चार्ज नहीं कर रहे. इवन हम आपको ये प्रोडक्ट आपके लिए फ्री दे रहे हैं. आप ये प्रोडक्ट को इवोल्यूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और आपको ये कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है और आप डेमो करने के लिए भी आसान हो सकता है, बिकॉज आपको इसीलिए प्रोडक्ट दिया जाता है.
We will provide you full marketing support material, marketing material support. We will going to provide you to expand this business. हमने क्या कर दिया है कि हम every week में 3 अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर 3 हमारा डेमो रहते हैं कस्टमर्स के लिए. जैसे हमारे पार्टनर्स के डेमो है वैसे कस्टमर्स के लिए भी डेमो है. तो हमने थर्सडे हमारा 11 बजे हमारा सिक्योरा वर्क का डेमो रहता है, जहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स है अपने कस्टमर्स को लेके आते हैं. फ्राइडे को 4 o'clock हमारा डेमो रहता है सिक्योरा गार्ड के ऊपर, और सैटरडे 11 o'clock मॉर्निंग सिक्योरा गार्ड के ऊपर हमारा डेमो रहता है. तो लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को वहाँ पे लेके आते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे तो 20-25 मतलब पार्टनर्स रहते हैं, और उसके कस्टमर्स 2-2 कस्टमर ऐसे मतलब 80-90 लोग भी रहते हैं जो ये प्रोडक्ट का डेमो लेते हैं और उनको उनके डाउट्स क्लियर करवाते हैं और आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए. कीप द कस्टमर सेफ, एंड मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप अपने कस्टमर्स को सेफ गार्ड करते हैं फ्रॉम डिजिटल हार्म. मतलब उनके वहां पे किसी की डेटा की चोरी होने वाली होगी या कोई एम्प्लॉय या बाहर से कहीं पे भी उनका आप सेफ गार्ड करते हो. आप उनके डॉक्टर हो, मतलब आप जैसे कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हो, आप आपके डेटा के लिए हमारी सिक्योरा की वैक्सीन लगा सकते हैं. ओके, नाउ हम आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं. आपको किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन? Anybody has a question? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, बस सजेशन है इसमें. जैसे नहीं, बस ये है कि जैसे क्या है, कोई भी बिजनेस है, अब उसका कैश है, बैंक तो हर वो मॉनिटर करता है, सिर्फ डेटा मॉनिटर नहीं करता है. डेटा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि चाहे वो 10 कस्टमर का डेटा हो या 1000 का हो, उसके लिए क्रिटिकल तो है. अब वो एक्सेल मेंटेन करते हैं गूगल ड्राइव में या अपना कॉन्टेक्ट में मोबाइल में, और चोरी चला गया तो परेशान होते रहते हैं. तो वो उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं पता है. अगर ये मिलता है तो वेल एंड गुड, और काफी अच्छा अपन इसको पुश कर सकते हैं अपने कस्टमर को, क्लाइंट्स को, कि कोई छोटे छोटा से लेके बड़े से बड़ा डेटा भी आप इसको कीजिए, मेंटेन कीजिए. टैली का डेटा है, और अधिकतर साल में 2-3 बार लोग परेशान होते ही हैं. टैली का डेटा लॉस हो गया या स्टाफ की वजह से डेटा लॉस हो गया या चोरी हो गया, ये तो बहुत जनरल कॉज है. तो ये प्रोडक्ट पे काम करने पे हो सकता है, फायदा हो सकता है. तो सर हमारा यही पर्पस है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मेरे को इतना समझ में आया है, मैंने कहा ये चीज हर आदमी के काम का है. यस सर. कंपनी का इवन सिंगल पर्सन का बिजनेस हो या 10-12 का टीम हो या 50 का टीम हो, जितना टीम साइज बढ़ता है तो ये एसेस करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन कल्प्रिट है, कौन बीच में गलत कर सकता है या हो रहा है. तो क्या कैश एंड बैंक तो अपन मैनेज करते हैं कि चलो कैश तो अपन को दिखता है या अमाउंट दिख रहा है, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि वो लूज होगा तो अपन को पता चलता है. लेकिन अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स है वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है ना. और प्रॉब्लम क्या है सर, आपका डेटा कोई चोरी करके भी लेके जाता है, आपको पता तो पता ही नहीं चलता. वो जब मिसयूज हो गया तब अपन को लिंक पता चलता है कि अच्छा वो 2 साल पहले हुआ होगा, 4 महीने पहले हुआ होगा. तो दैट इज अ क्रिटिकल थिंग. तो अगर लेकिन अगर शुरू से ही लॉक दो, और क्या है आज की डेट में यही है ना कि कहाँ कौन कंप्रोमाइज कर रहा है, नोबडी नोज किस लेवल पे कंप्रोमाइज हो रहा है. तो ये अच्छा है कि अपन शुरू से, वो तो लॉक एंड की होना हमेशा ही अच्छी चीज होती है. अगर आपका कुछ भी है, इंटेलेक्चुअल रिकॉर्ड है या आपका डेटा है या कोई दिल्ली का डेटा है, एक सिग्नेचर भी है, वो बाहर जाने चाहिए आपकी परमिशन के बिना, और लॉक मेंटेन होती है तो वेल एंड गुड. तो आपको पता है कि कौन सी चीज बाहर हुई है, कौन सी अपने पास है. गुड सर, है क्या नहीं? बस बराबर है सर. तो हम लोग वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं. हमने वो प्रोडक्ट ऐसे ही डेवलप किया सर. यस गुड. ओके, सो अभी देखिए सर, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर मैंने रखा है, बिकॉज हमारे सॉफ्टवेयर में कैसा है कि स्क्रीन शेयरिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद है. लेकिन अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा तो डेमो नहीं दे पाऊंगा, इसलिए हमने ये ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर मैंने ओपन किया है. अभी आप देखेंगे कोई भी मॉड्यूल में ऐसा हाइड करूंगा, हाइड हो जाता है फिर शो हो जाता है, ऐसा है बिकॉज हमने ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर मतलब स्क्रीन शेयरिंग भी हमने बंद करके रखा है. मतलब इतनी टाइप की सिक्योरिटी रखी है. तो अभी आप देखेंगे सिक्योरा में तो बहुत सारे मॉड्यूल है, लेकिन सिक्योरा क्लाउड हम लोग, सिक्योरा जो गार्ड है उसके हम लोग क्लाउड देते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग मैसेज देते हैं, सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर देते हैं, और हम सेटिंग्स मॉड्यूल और टैली मॉड्यूल देते हैं. ओके, हमारे पास सिक्योरा ऑफिस भी है. जैसे हमारा जो मतलब जो सिक्योरा का हमारा प्रोडक्ट फुल प्रोडक्ट लेता है उसको हम सिक्योरा ऑफिस देते हैं, जहाँ पे सिक्योरा वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट है. ओके, अभी जब भी मैं सेटिंग्स मॉड्यूल में जाता हूँ तो जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में मेरा टैली का डेटा ऐसा ओपन रहता है. ये मेरा टैली का डेटा है, मेरा टैली एप्लीकेशन है, और इसमें डेटा फोल्डर जहाँ पे मेरा डेटा ओपन है, और कोई भी कॉपी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी कंट्रोल राइट नाउ. ओके, सो मैं जैसे ही सेटिंग्स मॉड्यूल में क्लिक करता हूँ, ये मेरा सेटिंग्स मॉड्यूल ओपन हो जाता है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एक्टिवेट फोल्डर लॉक फीचर है जो पासवर्ड एडमिन के पासवर्ड से ही चलता है.
मतलब मैंने अपने एम्प्लॉय के कंप्यूटर में कुछ भी सेट किया है वो एडमिन के पासवर्ड के बगैर नहीं चलेगा, मतलब वो खुद नहीं कर सकेगा, उसको आपकी हेल्प लगेगी, या जिसके पास आपने पासवर्ड शेयरिंग करके रखा है उसकी हेल्प लगेगी, जो आपका भरोसामंद बंदा है। ओके, तो आपने ये देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डर का फीचर है और दूसरा प्रोग्राम का फीचर है। तो फोल्डर के फीचर्स हमने क्यों दिए कि जिसको आपको लॉक करना है, सिक्योर करना है, वो फोल्डर आप सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मेरे टैली का डेटा सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मैं टैली के फोल्डर के अंदर गया और डेटा फोल्डर सिक्योर करना है, तो मैंने डेटा फोल्डर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर किया। अभी जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मेरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डॉट में जाके उसको सिक्योरिटी के लिए एनेबल किया और मैंने मार्क एज हिडन कर दिया। अभी ये हिडन जो होता है वो इस तरह से हाइड हो जाता है कि मतलब आपके कंप्यूटर में ये फोल्डर है लेकिन नोबडी विल बी एबल टू सी योर फोल्डर। यू कैन सी व्हेन डेटा मैंने किया अभी, जैसे मुझे एरर क्या आ रहा है, विंडोज कांट फाइंड सी ड्राइव टैली डॉट erp9/data, चेक द स्पेलिंग इन ट्राई अगेन। मतलब फोल्डर है लेकिन विंडोज एक्सप्लोरर में भी नहीं दिख रहा है। इवन मैं डॉस कमांड प्रोम में जाता हूँ आपके सामने, डॉस कमांड प्रोम में भी नहीं दिखेगा, देखिए वहां पे भी नहीं दिखेगा। कोई बोलेगा कि हिडन फाइल की होगी, नहीं, ऑल हिडन फाइल भी दिखा रहा हूँ, वो भी नहीं दिखेगी। मतलब बेसिकली हमारा काम कैसा है कि हमने ये फोल्डर इस तरह से लॉक किया है कि कोई भी एप्लीकेशन ये फोल्डर को देख ही नहीं पाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने उसको मार्क कर दिया है हमारे प्रोग्रामिंग से। तो आप बोलोगे टैली कैसे चलेगा, बिकॉज मुझे टैली चालू करना है, तो टैली कैसे चालू होगा, बराबर है। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम का फीचर दिया है कि जो एप्लीकेशन को आपको अलाउ करना है, जो एप्लीकेशन को डेटा एक्सेस करने के लिए अलाउ करना है, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने टैली EXE सिलेक्ट की, ओके, अभी मैंने टैली EXE सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने टैली EXE को एनेबल नहीं किया कि वो काम कर सके, और मैं अभी टैली चालू करता हूँ आपके सामने। ओके, अभी आप देखिए मुझे डेटा का एक्सेस नहीं है बिकॉज मैंने अभी तक उसको एनेबल नहीं किया। अभी आपके सामने मैं एनेबल करता हूँ, एक्सेस एनेबल किया मैंने। अभी मैंने एस्केप किया, सिलेक्ट कंपनी किया, अभी आप देख सकते हैं डेटा मुझे दिखने लगा। ओके, डेटा मुझे दिखने लगा। अभी टैली एप्लीकेशन में मुझे डेटा दिखने लगा, मैं काम भी कर पा रहा हूँ, कुछ भी कर पाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं बाहर आपको दूसरे एप्लीकेशन से देखने की कोशिश करूंगा, डेटा ओके नहीं है। इवन मैं आपको डॉस कमांड प्रॉम्प्ट से देखने की कोशिश करूंगा, नहीं है। सो मेरी टैली एप्लीकेशन ही खाली उसको यूज कर पाएगी। ओके, सो आपका ये हो गया फर्स्ट, तो सिक्योरिटी हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया। और हमने ये भी किया कि अगर आप बैकअप लेंगे तो जब बैकअप कहीं पे भी लेंगे आपके कंप्यूटर में, वो डेटा की फाइल ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। मतलब लॉक कैसे होगी वो भी बताता हूँ मैं। जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में डेमो, ओके, यहाँ पे फोल्डर है, यहाँ पे डेस्क सिक्योर एक्सटेंशन हो गया। और अभी मैं आपको कोई भी फाइल बाहर ओपन करता हूँ, मतलब ये सिक्योर एक्सटेंशन की फाइल मतलब क्या है कि उसको हमने सिक्योर लॉक मार के रखी हुई फाइलें हैं। ओके, तो हम सिक्योर के जो फुल वर्जन है वहां पे हम आपको ये फीचर्स देते हैं कि आप एक्सटेंशन वाइज या पर्टिकुलर फोल्डर वाइज आप फोल्डर को, कोई भी फाइल को लॉक कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं सर। ओके, तो अभी मैं देखिए एक्सेल फाइल है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये फाइल कैसे एनक्रिप्टेड है, मतलब आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहेगा जिसकी की का कंट्रोल आपके पास है। सो मतलब कोई भी डेटा आपका चोरी नहीं होने वाला है। ओके, अभी हो गया हमारा टैली का डेटा सिक्योरिटी। और हमने टैली में और एक मोड डाला है जो मैं आपको बताता हूँ कि टैली मोड जो क्या करता है। अभी मैं 3 डॉट पे गया, टैली मोड ऑन किया मैंने। जैसे ही मैंने टैली मोड ऑन किया, आप देखोगे कि प्लीज वेट, एनक्रिप्ट द टैली एनेबल्ड फोल्डर्स। सो जो भी आपके कंप्यूटर में टैली के जो आपने फोल्डर को सिलेक्ट किया है, उसका उसका जो भी डेटा है उसको हम सिक्योर कर देते हैं। ओके, उसको सिक्योर करके एनक्रिप्ट करके हम सर्वर पे डाल देते हैं। अभी हम डालते कहाँ पे, क्योंकि हम पर यूजर आपको 5 GB स्पेस देते हैं, क्लाउड स्पेस देते हैं। तो मैं आपको क्लाउड स्पेस बताता हूँ जहाँ पे हमारा डेटा चला जाएगा। लेकिन अभी करंटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज डेटा इज राइट नाउ एनक्रिप्टिंग एंड अपलोडिंग, जस्ट 2 मिनट लगेगा। आपने देखा होगा मेरे पास 18-20 फाइल थी और वो कितना फास्ट हो जाता है। और ये मेरा लाइव डेटा है, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब टेस्टिंग वाला डेटा बनाया हुआ है, ऐसा भी नहीं है।
ओके, ये सब फाइल अभी अपलोड हो रही है, जिप बन के अपलोड होती है, और जो भी जिप फाइल बनती है वो एनक्रिप्टेड रहती है सर, जिसका कंट्रोल आपके पास है। अभी मैं आपको 10 हो गया, अभी सर्वर पे अपलोड हो गया। अभी आप देखेंगे सिक्योरा क्लाउड में जा रहा हूं मैं, ये फाइल कैसे सर्वर पे मुझे दिखती है वो मैं दिखा देता हूं। अभी आप देखेंगे ये सब जिप फाइल दिख रही है और एनक्रिप्टेड है, सिक्योरा एक्सटेंशन है इसके लिए। ओके, और आप देखेंगे अभी मैंने प्राइवेट एरिया में लॉगिन किया हुआ है, तो मेरी कई सारी ऐसी फाइल है जो मैंने प्राइवेटली मार्क की है, जैसे इसके लिए ये आइकन आ रहा है, आई का दिख रहा है, और वो प्राइवेटली मार्क है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे आज मुझे मार्क एज अनप्राइवेट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या फाइल ओपन करना है वो भी कर सकता हूँ। दूसरा आपका फायदा क्या होता है कि जब भी आपका फाइल का बैकअप सर्वर पे जाता है, एनी टाइम आपका बैकअप जाता है, आपका वर्जनिंग हो जाता है। मतलब हमने आपको क्या किया, वर्जन मैनेजर दिया है, मतलब कि आपके जो कस्टमर्स है जो काम करते हैं, आज उसने काम किया, ऑटोमेटिकली बंद किया टैली, तो सर्वर पे चला गया। मतलब डेट वाइज आप बैकअप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है, जो बैकअप कभी भी आपको कोई फाइल रिकवर करनी है वर्जन से आप कर सकते हैं। सो दिस फैसिलिटीज वी प्रोवाइड हियर। ओके, नाउ मैंने आपको बताया कि प्राइवेट एरिया मतलब आपने हिडन और हमने मोड रखा है। तो हमने क्या किया है कि आपके पास ऐसे कोई डेटा है जो आपको किसी को दिखाना ही नहीं है, शेयर नहीं करना है, तो आप प्राइवेट एरिया के अंदर रख सकते हैं। और वो प्राइवेट एरिया की जो फाइल्स है, मतलब मार्केट नॉन प्राइवेट करना है तो कर सकता हूँ, और अभी ये प्राइवेट है मेरा फाइल्स, तो ये मैं प्राइवेट एरिया के लॉगिन से ही देख पाऊंगा, और उसका पासवर्ड मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है, तो वो कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। ओके, सो हमने आपको ये फैसिलिटी दी है। अभी मैंने टैली मोड कर दिया ऑन, तो अभी क्या होगा, टैली मोड ऑन करने के बाद अभी मैं वापस टैली चालू करता हूँ आपके सामने। ओके, टैली चालू करता हूँ, तो ये क्या करता है, ओके, अभी देखेंगे मुझे डेटा नहीं दिखेगा, भले मैंने उसको परमिशन दी है टैली एप्लीकेशन को, लेकिन डेटा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज मैंने टैली मोड ऑन किया है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो डेटा है वो क्लाउड में चलेगा, आपके कंप्यूटर में डेटा नहीं है। अभी मैं जब भी मेरे कंप्यूटर से टैली चालू करूंगा, यहाँ से टैली चालू करूंगा, तभी ये क्या करेगा, मेरा जो डेटा है वो मेरे डेटा फोल्डर में डाउनलोड करेगा। इसलिए देखेंगे, आप देखिए टैली फाइल सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड, ओके किया मैंने, और अभी टैली चालू होगा, सिक्योरा के थ्रू ही टैली चालू होगा, और अभी देखेंगे मेरा डेटा दिखना चालू हो गया। ओके, और मैं काम कर सकता हूँ ये डेटा में, जो भी काम करना है मैं डेटा कर सकता हूँ। ओके, ये मैंने एंट्री करना चालू कर दिया मेरा काम, और अभी मैंने जैसे डेटा बंद किया, ओके, और ये सिक्योरा में बंद करूंगा, मेरा डेटा सर्वर पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा सर्वर पे चला जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम आपको ये पूरा फीचर्स देते हैं। किसी को कोई इसके अंदर क्वेरी या क्वेश्चन से पूछ सकते हैं सर, किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन है? हेलो, एक क्वेरी है छोटी सी कि अभी जो आपने डेमो मुझे दिखाया था हम लोग को, वो विंडोज सर्वर पे, पर इज इट विंडोज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, विंडोज कंप्यूटर में करेक्ट, बट हमारा क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ कंप्यूटर उबुंटू है, तो उसके लिए ये टूल्स अवेलेबल है या नहीं? सी टैली का जो एप्लीकेशन है आपका विंडोज के लिए चलता है, नॉट टेली बट हमारा जो ओके हमारा जो सिक्योरा है सर, ये हमारा सिक्योरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, ओके, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलता है, और हमारा सिक्योर एप्लीकेशन एंड्रॉइड फोन और आईफोन में भी चलता है। ओके, सो अगर आपका कोई भी डेटा सिक्योर करना है आपके कंप्यूटर में, मतलब उबुंटू में भी, तो हमारा एप्लीकेशन है सर। ओके, या गॉट इट। या किसी और को कोई क्वेश्चन या करिए। अभी देखिए मैंने सिक्योरा वापस चालू कर रहा हूं मैं, तो मैं सिक्योरा चालू करूंगा, मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डाल रहा हूं।
आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ऐसा नहीं है नॉन सिक्योर स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, अभी देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, बराबर है। और अभी मैं जो भी अभी मेरा क्लाउड में जाऊंगा, मुझे डेटा देखना है, बैकअप देखना है, मैं देख सकता हूँ। मेरा कंप्यूटर मेरे क्लाउड में चला गया है डेटा अभी। ओके, सॉरी, ओके। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो 007 वाली फाइल में मैंने कुछ चेंज किया था, तो ये मेरे क्लाउड में 007 में मार्क एज हिडन है, और यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट हो गया। ओके, तो ये मेरा डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाता है सर। ओके, सो इस तरह से हम आपको ये पूरा डेटा अपडेट करके रख देते हैं। आपके डेटा को सिक्योरिटी हम देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है प्लीज पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सिक्योरा जो गार्ड है उसका हमने डेमो आपको दिया है। अभी हमारे सिक्योरा के दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बात कर रहे थे। सिक्योरा वर्क है, सिक्योरा साइबर शील्ड है, ओके, सिक्योरा के, तो वो हम आपको फ्राइडे को पार्टनर मीट करते हैं। तो आप जब ये आज अभी आप पार्टनरशिप रजिस्टर करेंगे, हम आपको सिक्योरा का ये प्रोडक्ट फ्री देंगे, माई सिक्योरा का, जहाँ पे आपको फुल सिक्योरा प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको ईमेल सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, आप क्लाउड सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, लोकल डेटा सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, और हम फ्राइडे को मीट करेंगे 6 बजे, जहाँ पे हम आपके कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस या आपके सजेशंस है वो हम लेते हैं। और सेकेंड थिंग, हम आपको ये भी और फीचर्स कैसे कैसे हो गया, हमारा आगे के कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, और आपको ये प्रोडक्ट कैसे सेल करने में हेल्प कर सकते हैं, हम आपको कैसे उसको सेल कर सकते हैं वो भी देते हैं। हम जैसे आप पार्टनरशिप रजिस्टर करते हैं, हम आपको एक पार्टनर एरिया, सिक्योरा पार्टनर करके हमारा वेबसाइट है सिक्योरा पार्टनर्स का, जहाँ पे आप जाके आपको रिसोर्स सेंटर में से आप जो भी हमारे मार्केटिंग मटेरियल उसका एक्सेस आपको फ्री में मिल जाता है। ये पूरा रिसोर्स सेंटर में आपको एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आपको आपका नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपने पार्टनरशिप में डाला है वो डालना है, और आपको ऑटोमेटिकली पूरा फीचर्स आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं मेरा नाम डालूंगा और मेरे मोबाइल नंबर जो भी डालूंगा, लेकिन मेरे को मेरा फीचर्स एक्सेस मिल जाएगा। ओके, ये मेरा लॉगिन हो गया। अभी मुझे पूरा फीचर्स यहाँ से मुझे मिलेगा। हमारे सिक्योरा के बुक्स है, सॉल्यूशन एडवर्टाइजमेंट है, लीफलेट, पोस्टर्स है, सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। इवन आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इधर मार्केटिंग करने के लिए डेटा चाहिए, यहाँ से मिलेगा। वीडियो चाहिए, वीडियो भी मिलेगा, ब्रोशर्स भी मिलेगा। एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस लॉगिन से आपको मिल जाएगा। ओके, ये सिक्योरा का ये वीडियो है, ये सब स्कैम अलर्ट्स है, जो अलर्ट्स आती है स्कैम अलर्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी करंटली मेडिसिन का स्कैम चल रहा है ये अपना इंडिया में, बिकॉज ऑफ रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है उसके ऊपर लोग पैसा मतलब ऑनलाइन बेचते हैं और लोग पैसा भरते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है उनको, राइट। तो ये सब स्कैम्स होते हैं, उसका हम यहाँ पे आपको अलर्ट्स भी देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्योरा। सो नाउ आई विल लेट यू नो द सिक्योरा वर्क का जो हमारा सिक्योरा जो हमारा गार्ड का प्राइसिंग क्या है। तो सिक्योरा गार्ड टैली सिंगल यूजर के लिए हमारा 5000 रुपीज है, और मल्टी यूजर पर यूजर हम 3500 चार्ज करते हैं। ओके, सिक्योरा गार्ड मल्टी यूजर के लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म सेटअप चार्जेस करते हैं। बिकॉज वो क्यों करते हैं, बिकॉज हम आपके जो सिक्योरिटी मैंने आपकी बताई वो लोकल कंप्यूटर में है, लेकिन अगर आपको क्लाउड में चाहिए, इंटरनेट में चाहिए, मतलब आपने फोल्डर तो शेयर करना पड़ेगा डेटा का, तो उस वक्त हमको एक प्लेटफॉर्म सेटअप आपके वहां पे करना पड़ेगा, जिससे आपका नेटवर्क में सिक्योरिटी का एनहांसमेंट भी बढ़ जाएगा। मतलब आपको तो टैली का डेटा तो सिक्योर हो जाएगा, दूसरे भी डेटा आपको सिक्योर करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा मल्टी यूजर का प्राइसिंग है, और ये हमारा सिंगल यूजर का प्राइसिंग है। हमारा सपोर्ट भी 3 तरह का है, स्टैंडर्ड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और हमारा ट्रेनिंग का भी चार्जेस हम चार्ज करते हैं, और इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस करते हैं। ये सब हमने डालने का रीजन ये है कि हमारे पार्टनर्स है जो आगे जाके इंस्टॉलेशन खुद करेंगे, ट्रेनिंग भी खुद करेंगे और सपोर्ट भी खुद करेंगे, उसमें उनका परसेंटेज ऑफ कमीशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और इनको एडिशनल इनकम कमाने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए हमने ये चार्जेस इंट्रोड्यूस किए हैं बेस्ड ऑन द हमारे पार्टनर्स के और सबके सजेशन के बारे में हम उनको सजेस्ट किया था, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट के फीचर, ये एडिशनल हमने ये प्राइजेस और ये सब ऐड किए हैं। ओके, सो नाउ अभी करंटली
हमारा ये ऑफर चल रहा है सिक्योरा गार्ड के ऊपर, तो आप सिक्योरा गार्ड की वेबसाइट देख सकते हैं जहाँ पे हमारा ऑफर चल रहा है। जो हमारा जो करंटली हमारा सिंगल यूजर लाइसेंस 3,500 में हम बेच रहे हैं और 2450 में हम सिंगल यूजर बेच रहे हैं, जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का चार्जेस भी हमने रिड्यूस कर दिया है, ट्रेनिंग हमने फ्री रखी है और सपोर्ट भी हमारा जो स्टैंडर्ड सपोर्ट तो फ्री है ही। किसी को एकदम इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए, जिसको एकदम अभी का अभी मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने गोल्ड और प्लेटिनम सपोर्ट रखा हुआ है। ओके, सो एनीबॉडी हैज अ क्वेरी प्लीज आस्क। पहले आपको प्रोडक्ट का फीडबैक दीजिए और जो भी आपकी फीडबैक से आप दे सकते हैं सर। हेलो, कैन एवरीबॉडी कैन हियर मी? Yes. यस सर। यस यस। यस सर, बताइए सर। हिमांशु जी, अभी आपने जो बताया ये टेली स्पेसिफिक है, तो हम जैसे कि हमारे पास अगर टेली का तो एक सिस्टम होता है, बाकी 25-50 सिस्टम अलग है, इसमें Yes. डेवलपर्स काम करते हैं और या फिर अलग अलग डिजाइनर डेवलपर काम करते हैं, तो Right. उनका डेटा भी हमको इस तरीके से सिक्योर करना है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है सिर्फ टेली पे नहीं, तो काम अभी करें? हम नहीं, हमने क्या किया है, मैंने आपको बताया कि सिक्योराइज द फुल सॉल्यूशन है, जिसमें ईमेल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, सब सिक्योरिटी है, इवन यूएसबी लॉक सब फीचर है सर, बराबर है। तो ये जो अभी हम आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं ना, उसमें फुल सिक्योरिटी वाला प्रोडक्ट देने वाले हैं, लेकिन हम हमारा वो जो प्रोडक्ट है वो 7,200 पर यूजर का है। ओके, जो टैली के यूजर के लिए बहुत महंगा लगता है, तो हमने क्या किया, इसको स्केल्ड आउट वर्जन करके लिमिटेड फीचर्स के साथ हमने स्पेशल टैली के लिए हमने सिक्योर कार्ड बना दिया है। और हमारे यहाँ पे जो पार्टनरशिप में जो लोग आते हैं, मेजरली टैली के ऊपर डेटा सेव कर, मतलब टैली का सॉल्यूशन सेल करते हैं, इसीलिए हमने सिक्योर गार्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम फ्राइडे को जो मीट करेंगे, जहाँ पे हम आपको सिक्योर का वर्क का पूरा प्रोडक्ट बताएंगे, जहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स क्या है, और इवन आपका जब भी प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन होगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वक्त हम आपको सब फीचर्स आपको वहां पे समझाएंगे एज अ पार्टनर्स। या गुड। Yeah. Any more question?